Next question number 22nd. What must be the ratio of slit width to the wavelength for single slit to have first diffraction minimum at 45 degree? तो first of all आपको ये पता होना चाहिए, you should remember how does a diffraction pattern looks like, और आपको ऊपर से ये भी पता होना चाहिए कि diffraction pattern में जो central maximum होता है, central maximum के दोनों साइड पे होता है first minimum. So you have these points over here which represent first minimum on both sides, और आपको पता होगा central maximum के center से first minimum right on either side is at the same angle. तो चाहे वो ऊपर एंगल मेजर करो चाहे वो नीचे एंगल मेजर करो, that is nothing but same θ1 and θ1, right? तो आपको first of all you need to know that first minimum on either side, सेंटर के ऊपर या सेंटर के नीचे, ये सेम एंगल पे बनता है. अगर सेकंड मिनिमम की बात करोगे तो सेकंड मिनिमम विल बी आल्सो एट द सेम एंगल. सेम एंगल मतलब नॉट θ1, सम एंगल θ2 ऊपर एंड आल्सो डाउन. हियर दिस विल बी अगेन एट θ2. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो. एंड एडिशनली आपको ये पता होना चाहिए मिनिमा बनना, मिनिमा का कंडीशन क्या था? a sin θ इक्वल टू n लैम्बडा. पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा वाज द कंडीशन फॉर formation of minima in diffraction pattern, and path difference equal to n lambda was the condition for formation of bright bands in interference pattern, right? तो ये पहले पता होना चाहिए. So first of all, what is given to us? You have been given just angle θ1. θ1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि first minimum बोला है, first diffraction minimum, that is why θ1. आपको find क्या करना है? You are supposed to find out ratio of slit width to that of lambda to that of wavelength. ये आपको फाइंड करना है. और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, एज आई टोल्ड यू, फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा का फॉर्मूला था पार्ट डिफरेंस विच इज a sin θ n इक्वल टू n लैम्बडा. तो ये था कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिनिमास. नाउ when you want to solve this, it is easy क्योंकि a sin θ n इक्वल टू n लैम्बडा, बट हमको n की वैल्यू दी है 1 बिकॉज दे आर टेलिंग यू फर्स्ट मिनिमम. तो n की वैल्यू 1 डालोगे तो a sin θ1 इक्वल टू लैम्बडा. देयरफॉर a बाय लैम्बडा, सिर्फ लैम्बडा को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 1 अपॉन sin θ1, क्योंकि आपको फाइंड ये करना था a बाय लैम्बडा. तो 1 अपॉन sin θ1 मतलब 1 अपॉन sin 45, क्योंकि θ1 कितना दिया है 45. 1 अपॉन sin 45 मतलब 1 अपॉन रूट 2, क्योंकि sin 45 इज 1 अपॉन रूट 2. तो ये आपको मिलेगा 1 अपॉन रूट 2, मतलब मिल जाएगा रूट 2, और रूट 2 इज 1.414. सो दैट इज द रेशियो दैट यू गेट फॉर स्लिट विड्थ अपॉन वेवलेंथ, 1.414. नेक्स्ट क्वेश्चन. Monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. तो distant बोल दिया मतलब front of diffraction है, क्योंकि distant source है तो slit पे जो wavefront आएगा वो plane wavefront होगा. Good. The diffraction pattern observed on a screen 2.5 meter from the slit. मतलब ये जो आपको बोला है diffraction pattern, ये अगर आपको बताया है 2.5 meter away है from the screen, इसका मतलब सॉरी, diffraction pattern is observed on the screen which is 2.5 meter from the slit. मतलब slit to screen distance दिया है, that is capital D, which is 2.5 meter. आगे बोला है if the width of the central maximum is 6 mm, width of the central maximum W is 6 mm. 6 mm मतलब 6 into 10 power minus 3 meter. Then what is the slit width if the wavelength is? तो 3-4 केसेस है, तो आपको फाइंड करने के लिए बोला है यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज स्लिट विड्थ A, राइट? और 3-4 केसेस है, तो यू हैव बीन गिवन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आल्सो. तो आपको 2-3 केसेस है, आपको बोला है पहले केस में इन केस नंबर 1 वेवलेंथ इज हाउ मच
500 नैनोमीटर. 500 नैनोमीटर मतलब 500 into 10 power minus 9 meter. Okay. Then number 2. In case number 2, wavelength is how much? 50 micrometer. 50 माइक्रोमीटर मतलब 50 into 10 power minus 6 मीटर. तो यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा 50 into 10 power minus 6 मीटर. 50 माइक्रोमीटर. तीसरा है 0.500 नैनोमीटर मतलब 0.5 नैनोमीटर मतलब 0.5 into 10 power minus 9. 0.5 into 10 power minus 9 मीटर. So this is what you have. इतना आपके पास information है. Then you are supposed to find out slit width. So easy. How do you find out slit width? Of course, सबसे पहले you have to read the question carefully because they have given you width of central maximum. बोला है ना, width of central maximum. तो width of central maximum का फॉर्मूला था 2 lambda capital D by E. करेक्ट. तो यहां से A मिल जाएगा 2 lambda capital D by W. करेक्ट. अब when you start solving this, first of all you need to check. 3 अलग अलग वैल्यूज फाइंड करने हैं आपको, राइट. सिर्फ तीनों में डिफरेंस क्या है? वेवलेंथ. मतलब 2 तो वही कांस्टेंट, D इज द सेम. कितना है D? 2.5 एंड विड्थ इज द सेम. तो इसका मतलब जब हम 3 कैलकुलेशंस करेंगे तो उसमें 2D by W बार बार आएगा. हाँ, तो पहले उसको फाइंड कर लो. इट विल मेक कैलकुलेशन सिंपल. तो व्हाट यू कैन डू इज पहले आप 2D by W फाइंड कर लो. तो 2 into D is 2.5 and this is 6 into 10 power minus 3. ऊपर 5 नीचे 6. तो इस आ गया 5 by 6 और ये 10 पर माइनस से ऊपर जाएगा तो 10 power plus 3. करेक्ट. फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट केयर फॉर व्हाट आर द यूनिट्स. एक्चुअली इट इज डायमेंशनलेस क्योंकि D इज डिस्टेंस, W इज विड्थ इज आल्सो डिस्टेंस. तो ठीक है, वैसा रखो. अब केस नंबर 1 में यू आर सपोज टू फाइंड आउट A. ऑफ कोर्स A इज 2D by W lambda 1. क्योंकि केस नंबर 1 में डिफरेंस क्या है? सिर्फ वेवलेंथ. वेवलेंथ इज 500 into 10 power minus 9. ये तो पता ही है. ये है 5 by 6 into 10 power 3 और ये था 500 into 10 power minus 9. तो देखो ये 2 और ये 3, 5 और ये minus 9 minus 4 और 5 and 5 25 by 6 into 10 power minus 4 meter. 25 by 6 is 4.16. 10 power minus 4 meter. How do I know? 24 by 6 is 4 और वैसे भी आंसर में दिया है 416. तो वही आएगा 4.16 आएगा और क्या आएगा. गुड. देन अगर आपको इसको mm में लिखना है तो 10 minus 4 का एक minus 1 इसको दे दो मतलब 0.416 into 10 power minus 3 मतलब 0.416 mm. तो ये आ गया आपका पहला केस में स्लिट विड्थ. सिमिलरली सेकेंड केस में स्लिट विड्थ निकालना है तो इट इज नथिंग डिफरेंट. सेम है, एग्जैक्टली सेम और कैलकुलेशंस आर सिमिलर. तो कैलकुलेशन में भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं. इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. क्योंकि अब आप फाइंड करोगे वापस A इन केस 2 तो वापस वही 2D by W कॉमन फैक्टर था और लैम्डा 2. 2D by W was 5 by 6 into 10 power 3. Lambda 2 was 50 into 10 power minus 6. 50 into 10 power minus 6. 10 power 3 और ये 1 4 और minus 6 minus 2 और ये तो पता ही है 25 by 6 4.16 into 10 power minus 2. राइट. अगर आपको mm में लिखना है तो इसको 41.6 करके 10 power minus 1 एडजस्ट करो. तो what you can do is again a very simple thing. तो ये जो 4.16 है इसको 41.6 into 10 power minus 1 लिखेंगे और 10 power minus 2 पहले से था मतलब 41.6 into 10 power minus 3
मतलब 41.6 mm आएगा। नंबर थ्री वापस सेम 2d/w इंटू लैम्बडा 3, ये आ गया आपके पास 5/6 इंटू 10⁻3, लैम्बडा 3 है 0.5 इंटू 10⁻⁹, मतलब 5 इंटू 10⁻10। तो इसको 5 इंटू 10⁻10 ही लिख दो सीधा सीधा, ये आ गया 5 इंटू 10⁻10, राइट। अब करते बैठो एडजस्टमेंट। सो 10⁻3 एंड 10⁻10 कितना बचा, -7। वापस से 25/6 इज 4.16, तो दिस इज 4.16 इंटू 10⁻7। इसका -1 इसको दे दो, 0.416 इंटू 10⁻6, मतलब 0.416 माइक्रोमीटर। तो एक में आया आपके पास 0.416 mm, दूसरे में आया 41.6 mm, तीसरे में आया 0.416 माइक्रोमीटर। 0.416 mm, 41.6 एंड 4.16 into 10⁻4। ठीक है, हमने उसको माइक्रोमीटर में लिखा है, दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a star is emitting light at the wavelength of 5000 angstrom. Determine the limit of resolution of a telescope having an objective of diameter 200 inch. So first of all, a star is emitting light at 5000 angstrom. मतलब just for extra information, that star will appear yellow to you, so more or less yellow. Exact yellow नहीं होगा because exact yellow is around 5800. So 5000 angstrom, विबग्योर पता होगा आपको, right? So somewhere between green and yellow. Okay. So you have 5000 angstrom का wavelength, मतलब 5 into 10⁻⁷, क्योंकि 5000 into 10⁻10, 1 angstrom is 10⁻10, तो 3 जीरो यहाँ के और वो 10⁻10 मतलब 10⁻7 हो गए। आपको बोला है डिटरमाइन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, और टेलीस्कोप के केस में अगर आपको पता होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज एंगुलर रेजोल्यूशन, तो इसलिए आंसर भी रेडियन में है, करेक्ट है। और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो डायमीटर है जिसको हम एपर्चर बोलते हैं, दैट इज 200 इंच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल wavelength is in meter, this is in inch, is not acceptable, so you have to convert. So how much is 1 inch? 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अगर वो घर में कभी इंच टेप देखा होगा तो वहां पे भी होता है 2.54 सेंटीमीटर के बाद यू रिटर्न दिस 1 इंच, तो ये इंच आ गया। अब अभी बहुत सिंपल है, इसका पॉइंट निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 254, 254 इंटू 2 508, so this is 508 सेंटीमीटर। रिमेंबर दिस, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5.08 मीटर, राइट। तो एपर्चर 5.08 मीटर, 5 मीटर का ऑब्जेक्टिव लेंस, 5 मीटर इज roughly 15 feet, big telescope, good. Then you are supposed to find out angular resolution, मतलब d theta फाइंड करना है आपको, d theta फाइंड करना है। एंड देन फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको याद होना चाहिए, एंगुलर रेजोल्यूशन इज 1.22 लैम्बडा बाय a, करेक्ट। तो एक्सट्रीमली सिंपल, यू हैव d theta इक्वल टू 1.22 लैम्बडा, लैम्बडा कितना है 5 into 10⁻⁷, और a का वैल्यू आपके पास है 5.08, तो रफली ये 5 और 5 कैंसिल आउट, तो 1.22 into 10⁻⁷ रेडियन, और यही आंसर है, डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between two successive consecutive मतलब successive bright fringes in a biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 mm. By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 angstrom is used? The distance between two consecutive bright fringes, मतलब fringe width,
द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंज मतलब फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे आपको बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग वेवलेंथ 6000 इज 0.32। तो अगर आपको याद होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो पहले वेवलेंथ दिया है दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, और मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इन व्हाइल इट विल बी क्लियर बिकॉज यू विल बी टेकिंग रेशियो। जब रेशियो लेते हो तो फर्क नहीं पड़ता है कि सेंटीमीटर्स में है कि एंगस्ट्रॉम में है कि मीटर्स में, बिकॉज एंगस्ट्रॉम बाय एंगस्ट्रॉम कैंसल्स आउट। फ्रिंज विड्थ इफ यू रिमेंबर हमने डिनोट किया था x से, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ x1 इन द फर्स्ट केस 0.32 mm, और लैम्डा 2 अभी आपको बोला है कि आपने पूरा सेटअप सेम रखा है, सिर्फ आपने चेंज किया वेवलेंथ, राइट? मतलब एक बल्ब खराब हो गया होगा, फिर आपने निकाल के दूसरा लगा दिया। पहले आपके पास येलो कलर का था, वो खराब हो गया, फिर दूसरा अवेलेबल ग्रीन का ही है तो ग्रीन लगा दिए, तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो मिलेगा, लेकिन चेंज क्या होगा? तो फ्रिंज विड्थ चेंज होगा। So that is what they are asking you, by how much distance or by how much will the distance change? मतलब basically how much is the change in the fringe width? That is what they are asking you. तो ये 4800 एंगस्ट्रॉम है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपको फाइंड क्या करना है? तो आपको फाइंड करना है, you are not supposed to find out x2, no, x1 minus x2. Why? क्योंकि फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला याद है फ्रिंज विड्थ का, लैम्बडा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो फ्रिंज विड्थ x इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, मतलब लैम्बडा कम होगा तो फ्रिंज विड्थ कम होगा, और पहले वेवलेंथ ज्यादा था तो पहले फ्रिंज विड्थ ज्यादा था, फिर वेवलेंथ कम हुआ तो फ्रिंज विड्थ कम हुआ। इसके लिए x1 माइनस x2, उल्टा करोगे तो नेगेटिव आएगा फिर। ओके, तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, डेल्टा x चेंज इन फ्रिंज विड्थ। Then formula as I told you just now, fringe width का formula है lambda d by small d, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ना डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन चेंज हुआ, ना डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट चेंज हुआ तो सिर्फ वेवलेंथ, मतलब x is proportional to wavelength lambda. Okay, then what you will have here is simple, ये x2 by x1 equal to lambda 2 by lambda 1. तो x2 is lambda 2 by lambda 1 into x1. lambda 2 as I told you कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ये 6000 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 4200 ऊपर 4800 अपॉन 6000, तो एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, और ये x1 था आपके पास 0.32 mm, तो इसको mm में रखते हैं। वेवलेंथ बाय वेवलेंथ कैंसिल हो गया, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो गया, तो यूनिट क्या आएगा? mm। वो कहां से आएगा? x1 से, और ये सिंपल है, इट इज 6 8 एंड 10, करेक्ट। अब ये आ गया आपका, आपको 4/5 करना है, 4/5 करना है तो 0.8 लिखो बेस्ट, 0.8, क्योंकि 8/10 इज 0.8, तो 0.8 इंटू 0.32, 0.8 इंटू 0.32, मतलब बेसिकली mm में है, ये भूलना मत, मतलब बेसिकली इट इज 8 इंटू 32 इंटू 10 पावर -3 mm भूलना मत। 256 कैसे? 32 इंटू 10 320, लेकिन 8 करना था, मतलब हमने 32 को 2 बार ज्यादा गिना है, मतलब 320 में से 64 माइनस करोगे, 320 में से 60 माइनस कर लो, 260 माइनस करना 64, आपने माइनस किया 60, तो और 4 माइनस करो 256, 256 इंटू 10 पावर -3, मतलब 0.256 mm, ये आ गया फ्रिंज विड्थ इन द सेकंड केस। पर आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था x1 माइनस x2, तो 0.32 माइनस 0.256, दिस इज नथिंग बट 0.64 mm, तो 0.64 mm is the 0.064 not 0.64, क्योंकि 0.32 में से 0.256 माइनस होगा तो 0.064 mm, so that is what you will get, simple. Next question, what is the minimum distance between two objects which can be resolved by a microscope? Microscope में minimum distance for which the two objects are resolved is called as limit of resolution,
and it is in meter. मतलब basically it is length raised to 1. जैसे टेलीस्कोप में एंगल आता है, एंगुलर रेजोल्यूशन, यहाँ पे आता है डिस्टेंस. Having visual angle of 30 degrees when light of wavelength 500 nanometer is used. So first of all, what is given to you? आपको पूछा है minimum distance मतलब limit of resolution. So you are supposed to find out minimum distance for which the two objects are resolved. मतलब limit of resolution D पूछा है. आपको दिया है wavelength. Wavelength is 500 nanometer मतलब 10 power minus 9 meter. अब ये जो विजुअल एंगल है, दिस इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू. देखो, द आइडिया वाज, अगर आपको याद होगा जब हमने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे, तो द थिंग इज हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस था, और अगर आपको याद होगा हमने बोला था कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है और ये है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. ये जो एंगल बनाता है पॉइंट सोर्स प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब पॉइंट सोर्स जो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है ऑन द एपर्चर ऑफ लेंस, दिस इज लेंस. लेंस का एपर्चर मतलब ये, यहाँ पे जो एंगल बनता है ये ऊपर था अल्फा और नीचे भी था अल्फा. तो टोटल एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट सोर्स एट द एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस वाज 2 अल्फा. करेक्ट, गुड. अब ये जो विजुअल एंगल होता है ना, विजुअल एंगल बोला है कहीं पे? Yes. So basically, visual angle is 2 alpha. और total angle is 2 alpha. तो बट ये आपको चेक करना पड़ेगा, because otherwise it will go wrong. तो उसको मैं बीटा नाम देता हूँ. तो this is small assignment for you, very small assignment to check what is visual angle. इसको मैं बीटा नाम दे रहा हूँ और इसको मैं 30 डिग्री बोल रहा हूँ. This is 30 degrees. Okay, क्योंकि 30 बोला है आपको. Then you're supposed to find out limit of resolution. So do you remember formula for limit of resolution? D equal to, और ये जो है माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में एपर्चर सर्कुलर होता है और यहाँ पे बोला भी है. ओके, अब when light of wavelength 500 nanometer is used, so do you remember we had 3 cases: self luminous, non self luminous. self luminous के केस में याद है आपको 1.22 lambda upon 2 sin alpha ये था. if you remember formula for D, limit of resolution 1.22 कहां से आया? सेल्फ लुमिनस था इसके लिए, लैम्डा बाय 2 साइन ऑफ अल्फा. राइट, ये था इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फा. यहां जो आपको विजुअल एंगल बोला है, अगर इन टर्म्स ऑफ विजुअल एंगल लिखोगे तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज होता है. यहाँ पे साइन अल्फा की जगह पे आता है टैन बीटा. राइट, तो दैट इज द ओनली चेंज. विजुअल एंगल क्या है ये आपको चेक करना है. वेरी स्मॉल असाइनमेंट. तो नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, क्योंकि आपको पता है लैम्डा कितना 500 नैनोमीटर मतलब 500 into 10 power minus 9 मतलब 5 into 10 power minus 7 upon 2 tan of beta. What is tan of 30? Sin 30 by cos 30. What is sin 30? tan of 30 कितना होता है? 1 by root 3. 1 by root 3. ये ऊपर जाएगा, तो आएगा आपके पास 5 into 1.22 upon 2 root 3 और 10 power minus 7. Right? So this is what you will get. अब करो इसको सॉल्व. root 3 is 1.732 या फिर root 3 by 2. Trigonometric tables. 1 by root 2 0.707 something. root 3 by 2 0.8606. साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्री के टेबल आपको दिमाग में फिट हो जाने चाहिए. व्हाट इज साइन 0? 0. व्हाट इज साइन ऑफ 30?
मतलब 0.5. What is sine of 45? 1 by root 2 मतलब 0.7071 something. What is sine of 60? रूट 3 by 2 मतलब 0.8606. तो ये जो रूट 3 by 2 है ये है 0.8606. ये याद हो जाना चाहिए. अगर ये याद रहेगा तो ही कैलकुलेशन फास्ट होंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट. क्यों ऐसा? क्योंकि अभी 0.86 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर 0.8606 को 10 से मल्टीप्लाई करता तो 8.6 मिलना चाहिए था, लेकिन 5 से करे तो उसका हाफ मतलब 4.3. तो 4.3 और 1.22, 4.3 इंटू 1.22 मतलब 43 इंटू 12, 43 इंटू 12 430, उसमें 86 कितना 90 कर लो, 430 में 90 ऐड कर लो 520. तो ये 4.3 इंटू 1.22 इज 5.2 इंटू 10 पावर -7. इतना आंसर मिलना चाहिए. अभी ये अप्रोक्सीमेटली किया हमने, एग्जैक्ट किया होता तो 5.28 आ रहा है इंटू 10 पावर -7. दैट इज द ओनली डिफरेंस 0.08 का. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व. बट रिमेंबर ये विजुअल एंगल जो है दैट इज assignment for you because you are supposed to check out what is the meaning of visual angle. Next question, and we will do only one MCQ, and that will mark the end of this chapter. So, in YDSC, matlab in Young's double slit experiment, the two coherent sources have different intensities. If the ratio of maximum intensity to the minimum intensity in the interference pattern produced is 25:1, तो आपको दिया है Imax by Imean. Imax by Imean मतलब ब्राइट टू डार्क का रेशियो, ब्राइट बैंड का इंटेंसिटी अपॉन डार्क बैंड का इंटेंसिटी का रेशियो 25:1. What was the ratio of intensity of the two sources? मैंने आपको बताया था, रेशियो पूछा है. आपको याद होगा मैंने आपको Imax by Imean 3-4 फॉर्मूले बताए थे. एक था A1 plus A2 upon A1 minus A2 ब्रैकेट स्क्वायर, एक था R plus 1 upon R minus 1 ब्रैकेट स्क्वायर अगर R was A1 by A2, एक था रूट ऑफ I1 plus रूट ऑफ I2 upon रूट ऑफ I1 minus रूट ऑफ I2 का ब्रैकेट स्क्वायर, एक था रूट ऑफ I1 by I2 plus 1 upon रूट ऑफ I1 by I2 minus 1 का ब्रैकेट स्क्वायर. करेक्ट? राइट. आपको चाहिए ही I1 by I2, यही तो पूछा है. तो एक काम करो, अब स्क्वायर रूट ले लो, पहले स्क्वायर रूट ले लो क्योंकि इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 25 है. तो इफ यू टेक स्क्वायर रूट यू गेट 5/1 अंडर रूट ऑफ I1 by I2 plus 1 upon under root of I1 by I2 minus 1. अंडर रूट का अंडर रूट नहीं है ये, सॉरी फॉर दिस, दिस इज समथिंग लाइक दिस. ओके, -1. क्रॉस मल्टीप्लाई, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट 5 अंडर रूट ऑफ I1 by I2 minus 5, क्योंकि सिर्फ मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 by I2 plus 1. ये इधर लाओगे, ब्रिंग इट हियर, तो माइनस हो जाएगा. तो 5 रूट ऑफ I1 by I2 माइनस रूट ऑफ I1 by I2, ये वहां गया तो 6 हो गया, ये आ गया 4, ये आ गया 4 ना, 5 में से एक गया. I1 by I2 इक्वल टू 6, 2 एंड 3 तो 3/2 आ गया. I1 by I2 का रूट आ गया आपके पास 3/2. अगर आप स्क्वायर करोगे तो I1 by I2 विल बी 9/4. Option number D. So that's the end of this chapter.